Hello friends, welcome to Manu Law classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now here we are going to discuss about the important news from the daily Hindu analysis. So friends, let's start with the important news. आज का जो news है वो बहुत ज़्यादा revision type में चलेगा. We have done this news before also, but today after doing this news ये सब हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा. So let's start. The first is two news from which is related with China. So we already know that recently the petroleum point 16 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, तो वहाँ पे डिसएंगेजमेंट हुआ है. ये डिसएंगेजमेंट जस्ट हैपेंड बिफोर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ समिट विच वाज हेल्ड इन समरकंद इन उज्बेकिस्तान, वेयर इंडिया, चाइना, Pakistan, then Russia, then 4 Central Asian countries and Iran, which became the new member. They all participated along with the observer countries. Now, if you will just see over here, अब जो इशू आ रहा है दैट इज़ टू थिंग. एक तो देखिए नेवी से रिलेटेड बात हो रही है. द सेकेंड इज़ अबाउट द ग्रेजिंग लैंड विच आर टर्निंग इनटू बफर जोन्स. तो यहाँ पे जो है जो विलेज है विच इज़ इन लद्दाख चुशुल सेक्टर, तो वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलॉन्ग जितने भी विलेजेस हैं, ओके, सो द 3 लार्ज ग्रेजिंग एरियाज विच हैव बीन टर्न्ड इनटू नो मैंस लैंड और बफर जोन्स आफ्टर इंडियन ट्रूप्स हैव बीन पुल्ड आउट बैक फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन द कुग्रांग वैली. ओके, सो दिस इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16 एंड 17. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दैट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से 60 किलोमीटर, ओके, सो वेयर द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज़ हैपेंड, सो आर्मी हैज़ क्लाइम डाउन फर्दर, मतलब पीछे आ गया है. देन दैट स्पेस हैज़ गॉन टू चाइना क्रिएटिंग द न्यू बफर जोन्स. ठीक है, after the disengagement process. The second is about the India China remains a formidable challenge, says Navy chief. So here we are talking about Indian Ocean region. ठीक है, तो यहाँ पे चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक मिशन है दैट इज कॉल्ड एज सागर पॉलिसी, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द region. Now over here our Navy chief Admiral R. Hari Kumar, he has said that here China remains a formidable challenge. तो यहाँ पे what he is saying is very important. He is saying that China is now maintaining a continuous presence in the Indian Ocean region since 2008 by leveraging anti-piracy operations. मतलब anti-piracy operations के नाम पे Chinese Navy are already there in Indian Ocean and it normalizes their naval presence. Okay, so here if you will just see that at any given point there is 5 to 8 Chinese Navy units. It can be warship or research vessels. तो अभी रिसेंटली हमने एक रिसर्च वेसल्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज Yuan Wang 5 Chinese satellite tracker or research vessel. You can say it has docked at Hambantota port in Sri Lanka. Fine. So over here, so this is the thing. What one is anti-piracy operation, second is Chinese fishing vessels, research vessels or warships which are present in Indian Ocean region. Then second is that if you will just see that China is also developing a base in Djibouti and it has involved in the development of various ports in Indian Ocean region, Sri Lanka, Myanmar, Pakistan and other countries. तो श्रीलंका का तो मैंने आपको बता दिया, हम्बनटोटा पोर्ट. पाकिस्तान में you have Gwadar port from where they are developing a China-Pakistan economic corridor to Xinjiang region. Okay, and then in Myanmar they have Sitwe port. Okay, now the next is about the EWS quota, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाया है, where the 10% quota was given for economically weaker sections, and then there are legal issues pertaining to it, that whether it violates the basic structure, whether it goes against the Indra Savni case which fixes the upper ceiling on reservation at 50%. Okay, and then how this is economic criteria enough to grant a reservation, and if economic criteria is enough to grant reservation, then why this reservation is also not for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. ओके, तो यहाँ पे अब जो के वेणुगोपाल हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, और हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन किया है, मुकुल रोहतगी इज गोइंग टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वंस के वेणुगोपाल रिटायर्स.
So now KK Venugopal, he has submitted before a constitution bench that the 10% quota for economically weaker section of society does not erode the rights of the scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes. Okay, so Mr. Venugopal has said that this EWS quota was given independent of already existing 50% reservation which is granted to backward classes, scheduled caste and scheduled tribes. The next is, now just see, ये एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ अभी डेवलप हो रही है. रिसेंटली हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ने एसटी लिस्ट को अपडेट किया था. ठीक है, हमने इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था कि पहले स्टेट जो है वो एसटी जिनको एसटी में इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है उसको पढ़ता है, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को देता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को देते हैं, देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वंस अप्रूव्स इट, देन इट कम्स बैक टू मिनिस्ट्री of Tribal Affairs, and Ministry of Tribal Affairs forwards that proposal to the Union Cabinet. Once the Union Cabinet approves it, then the bill is passed in the Parliament, amending the presidential order related to list of scheduled caste and scheduled tribes. So here, if you will just see that people who are belonging to the Kurmi community, they have blocked railway tracks in various parts of eastern India, demanding their inclusion in the list of scheduled tribes. Okay, so see this Kurmis who have blocked the railway tracks demanding inclusion in ST list. So this protest going on 3 states, that is West Bengal, Jharkhand and Odisha. अब हम देखेंगे दैट इनका स्टेटस क्या है इन 3 स्टेट्स में. तो अगर हम बात करें ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, झारखंड के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि झारखंड ने अभी रिसेंटली एक एक्ट पास करने जा रहा है वेयर द कट ऑफ डेट फॉर डोमिसाइल इज 1932. ठीक है ना, कि जो रेसिडेंस है झारखंड का वो कैसे डिटरमाइन होगा, तो जो 1932 का जो लैंड रिकॉर्ड्स है बेस्ड ऑन दैट द डोमिसाइल्स ऑफ झारखंड विल बी डिसाइडेड. फाइन. तो अब हम देखेंगे कि जो ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड है, यहाँ पे जो कुर्मी कम्युनिटी है, दे आर क्लासिफाइड अंडर ओबीसी. ओके, बट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रेपिडेडली रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटी इन एसटी list, and the latest demand has come from West Bengal in last year, that is January 2021. Okay, now the research has also been conducted by State's Cultural Research Institute, okay, describing their ethnographic traits, which is very important for giving recognition in ST reservation. उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट जो है उसने भी 2015 में प्रपोजल पास किया था फॉर इंक्लूजन ऑफ कुर्मीज और कुर्मी महतो झारखंड कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ एसटीज. द नेक्स्ट इज द लंपी स्किन डिजीज़. तो यहाँ पे हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे. ओके, तो लंपी स्किन डिजीज़ इट इज़ कॉज्ड बाय, इफ यू विल जस्ट सी कि वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो मुंबई पुलिस दे हैव ऑर्डर्ड द प्रोहिबिशन ऑफ कैटल ट्रांसपोर्टेशन इन मुंबई टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़. तो ये जो डिजीज़ है ये महाराष्ट्र में इट हैज़ किल्ड 127 कैटल, इट हैज़ स्प्रेड टू 25 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, and it has infected the cattle of more than 10 states. So let's do everything about lumpy skin disease. अगर आप लोगों ने पहले ये न्यूज़ को मिस किया था तो इसको पढ़ने के बाद आपको lumpy skin disease के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. So if you will just see the lumpy skin disease, so it is caused by the lumpy skin disease virus which belongs to genus Capripox virus, which is the part of Poxvirinae family. This is important. तो lumpy skin disease जो है वो एक वायरल डिजीज़ है. किससे होता है? कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है. ये कैप्रीपॉक्स वायरस किस फैमिली का पार्ट है? दैट इज़ पॉक्सविरिडिए फैमिली. इस पॉक्सविरिडिए फैमिली में अगर हम देखेंगे तो 2 और बीमारियां आती हैं, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स. उसके बाद जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है उसका जो एंटीजेनिक सिमिलैरिटी है इट इज़ विद शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस. सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट लंपी स्किन डिजीज़ इज़ that it is not a zoonotic virus. So if it is not a zoonotic virus, it means that this disease cannot spread to humans. Then how this disease spreads? So it is spread through, it is a vector borne disease which spreads through mosquitoes, biting flies, ticks, and affects host animals. Mainly it affects cow and its progeny and water buffalo. Okay, this disease can also spread through contaminated food and water. उसके बाद जो LHD है ये क्या, इट अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल. ओके, एंड द नोड्स जो होते हैं लिम्फ नोड्स दे एनलार्जेस एंड दे अपीयर लाइक लम्प्स ऑन द स्किन एंड हैंस द नेम.
ये जो लम्ब्स होते हैं दे आर 2 to 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। फाइन। अब उसके बाद जो सिम्टम्स है डिजीज़ का वो क्या है? सो द सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, शार्प ड्रॉप इन मिल्क येट, डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज एंड नोज, सैलिवेशन मतलब बार बार पानी निकलना मुंह से, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिप्रेशन, डैमेज्ड हाइज, देन थिननेस और वीकनेस ऑफ एनिमल्स, इनफर्टिलिटी एंड एबॉर्शन। उसके बाद जो इन्फेक्शन है उसको इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब इन्फेक्शन अब अपने आप को शो करेगा इट टेक्स अराउंड 28 डेज। ओके, एंड फ्रॉम अदर एस्टिमेट्स इट टेक्स 4 to 14 डेज। ओके, अब इसका देखिएगा मॉर्टिलिटी रेट अगर हम देखेंगे तो इट इज़ द मॉर्बिडिटी इज़ 2 to 45%। ओके, मॉर्बिडिटी मतलब कितने लोगों को बीमार कर सकता है, एंड मॉर्टिलिटी रेट इज़ लेस देन 10%। करेंटली जो इसका आउटब्रेक है 2022 का, सो द फर्स्ट केस ऑफ लंपी स्किन डिजीज इट वाज डिटेक्टेड इन अप्रैल 2022 इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, बट नाउ इट इज हैज स्प्रेड एट अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट इन राजस्थान। अब हम डिजीज़ के थोड़े हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डिजीज़ है सबसे पहले जाम्बिया विच इज़ अ सब सहारन अफ्रीकन रीजन, वहाँ पे ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1929 में। उसके बाद फैलते फैलते ये साउथ एशिया और चाइना में आया 2019 में, एंड नाउ दिस डिजीज़ इज़ ऑल्सो एंडेमिक, मतलब एंडेमिक का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड इन दैट पार्ट, सो इट इज़ एंडेमिक इन अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड टर्की। जब इंडिया में 2019 में आया था, ओके, सो इट इन्फेक्टेड मेनली ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि द मेन रीज़न फॉर द 2019 आउटब्रेक वाज द पोरस बॉर्डर बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश थ्रू विच द इलीगल कैटल ट्रेड टेक्स प्लेस। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ इट इज़ सेफ टू कंज्यूम द मिल्क। तो फाओ कहता है दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मिल्क इन एशिया इज़ प्रोसेस्ड आफ्टर कलेक्शन। ओके, और उसको हम प्रेशराइज करते हैं या बॉयल करते हैं और ड्राई करते हैं टू गेट द मिल्क पाउडर। तो ये इंश्योर करता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिवेट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में उत्तर प्रदेश में, इनके जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि दैट LHD जो है ये नॉन जूनोटिक डिजीज़ है, हैंस इट इज़ सेफ टू कंज्यूम मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड कैटल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द क्वालिटी ऑफ मिल्क इवन इफ यू हैव, अगर आप इसको चाहे बॉयल करें चाहे ना बॉयल करें। उसके बाद जो इसका इकोनॉमिक चैलेंज है इस डिजीज़ का, तो सी साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखें सो इट कैन लीड टू लॉस ऑफ $1.45 बिलियन बिकॉज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ काउ डिक्रीजेस। ओके, जो उनका ड्राउट पावर कैपेसिटी होता है, जो उनका मिल्क प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है, वो सब खत्म हो जाता है। फाइन। If you will see in countries like India, so India is the largest producer of milk in the world. Okay, so it produces 210 million tons annually, and India also has the largest head count of cattle and buffalo worldwide. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि this thing LHD disease can impact the availability of milk in India. Okay. Now if you will just see over here the current outbreak which has started in Gujarat and Rajasthan, now it has spread to Punjab, Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Uttarakhand, then Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Haryana. Then disease has also been reported from Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi and Jharkhand. उसके बाद अगर हम देखेंगे about the vaccine, तो ये पाया गया है कि जो गोट पॉक्स वैक्सीन है it is very effective against LHD. ओके, अब इंडिया में भी एक वैक्सीन बना है। ICAR के 2 बॉडीज़ हैं, एक तो यहाँ पे जो मैंशनड है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, द नेक्स्ट इज नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स विच इज़ इन हिसार। सो दे बोथ हैव टुगेदर मेड अ वैक्सीन विच इज़ कॉल्ड एज लंपी प्रोवैक वैक्सीन। लंपी प्रोवैक वैक्सीन, दिस लंपी प्रोवैक वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द वायरस सैंपल विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम रांची ड्यूरिंग द 2019 आउटब्रेक। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ भी पढ़ा था कि इंडिया में जो 2022 का जो लंपी स्किन डिजीज़ का जो जेनेटिक कोड है वो 2019 के कोड से अलग है, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था। ठीक है, सो नाउ दिस लंपी प्रोवैक वैक्सीन जो खुद डिराइव हुआ है 2019 के वैक्सीन में वायरस के बेसिस पे, so it may have less efficacy in this 2022 outbreak. ठीक है, आगे चलते हैं। Let's take a factual information that is the International Day of Peace. So the International Day of Peace is observed on September 21 by the United Nations.
The next is again a one liner. So we will see over here that Gujarati feature film Cello Show makes the cut for the Oscar. तो जो इंडिया की जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इट हैज़ चोजन पान नालिन सेमी ऑटोग्राफल गुजराती ड्रामा दैट इज छेलो शो, दैट इज द लास्ट फिल्म शो as India's official entry for the 95th Academy Awards in the category of Best International Feature Film category. Okay. The next is withdrawal of monsoon. ठीक है ना, तो if you will just see over here that due to climate change there is change in pattern of monsoon also. अब कुछ साल से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो लास्ट मंथ होते हैं मानसून के, द लास्ट मंथ ऑफ मानसून, यहाँ पे क्या होता है लास्ट मंथ ऑफ मानसून में, दैट यहाँ पे द रेनफॉल इज हैवी, द रेनफॉल इज हैवी, ठीक है ना. सो रेनफॉल इज हैवी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ मानसून, ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. सेकेंड क्या है, शिफ्ट इन द पैटर्न. जैसे कि अभी हम देखेंगे कि जो इस बार जो था लो प्रेशर जो है इट शिफ्टेड टूवर्ड्स साउथ एंड सेंट्रल इंडिया. तो इफ़ यू विल जस्ट सी द सरप्लस ओवरऑल इंडिया में कितना सरप्लस रेन हुआ है 7%, बट दैट सरप्लस रेन हैज़ बीन रिकॉर्डेड ओनली इन सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया. ठीक है, अब जब हम एडिटोरियल पेज पर जाएंगे और जब हम फूड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया मतलब वेस्टर्न इंडिया जहाँ पे रेनफॉल डेफिसिट हुआ है इस साल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन है. बट इफ़ यू विल कम टू सदर्न इंडिया तो यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन नहीं दिखाया. द मेन रीज़न इज़, एक तो इकोनॉमिक रीज़न तो है, सेकेंड ये मानसून भी है. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो खारिफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स था वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस erratic pattern of rainfall. So if you will just see now, the Indian Meteorological Department has said that India has overall recorded 7% more rainfall, but जो southern peninsula और central parts है they have recorded 29% and 33% excess rainfall. But if you will just see, okay, मणिपुर में देखो, ठीक है, it is -48%, fine. Then if you will just see at Jharkhand -20%, ठीक है. Then if you will just see Punjab -21%, Uttar Pradesh -31%. So you will see that there is uneven spread of rainfall, especially in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and parts of West Bengal and Northeast India. They all ended up with deficient rainfall. Now अगर हम देखेंगे कि now the Indian Meteorological Department, now it has said that now it is the withdrawal of monsoon. Now the monsoon will first withdraw from southwest Rajasthan from September 17 and it will completely withdraw from India by September 30. और इसके बाद जो बारिश होगी it will be called as post monsoon rainfall. ठीक है, so how we determine that monsoon is withdrawing? So it is determined by meteorological conditions such as anticyclonic circulation, absence of rain in past 5 days and the water vapor imagery indicating dry weather conditions over the region. So if you will just see that the rainfall, the monsoon, southwest monsoon is withdrawing from this region. Okay. Now from foreign affairs, so Britain looks to future as Elizabeth II is laid to rest. So we know that Elizabeth II, who is the longest ruling monarch of the United Kingdom, she died at Balmoral Castle in Scotland. Now she is buried at St. George's Chapel alongside the remains of her parents, sister and husband Prince Philip, who died last year. Now she is succeeded by Charles III, King Charles 73. Okay, over here. The next is Pakistan. China keeps Sri Lanka, Pakistan waiting for loan. So see, this issue is simple, that if we see two countries in India's neighborhood, Sri Lanka and Pakistan, ठीक है ना, तो यहाँ पे these both countries are facing debt issue. ठीक है, एंड नाउ दे हैव अप्रोच्ड IMF फॉर बेल आउट पैकेजेस. तो श्रीलंका को तो बेल आउट पैकेज मिल गया है, कितने का, $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज. इसके ऊपर ऑफिशियल एग्रीमेंट जो है, ऑफिशियल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव हो चुका है. ठीक है, पाकिस्तान इज स्टिल इन द प्रोसेस एंड ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट इट हैज़ बीन गिवन अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दैट इज EFF टू श्रीलंका. अब यहाँ पे चाइना का देखिए रोल क्या है, दोनों कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है. ओके, सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट आउट चाइना इज सेइंग दैट
China has collectively given $26 billion to China and to Pakistan and Sri Lanka in past 5 years. Okay, then China has also said that previously they have provided relief supplies of $57 million to Sri Lanka. अब यहाँ पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने एश्योर किया है IMF को दैट दे आर गोइंग टू reduce their capacity payments to Chinese projects and they will seek the restructuring of loan which is $1.09 billion which is owed by Chinese power producers. Then Sri Lanka is also pressing Beijing for $4 billion loan. Okay, fine. So here rather than restructuring the loan, okay, so Beijing has indicated that it will give extended new loans to Sri Lanka. The next is from economics. We have very important news about the illegal loan apps issues in India. So I have done this topic earlier also. Okay, so let's start. So illegal लोन एप्स इशू इन इंडिया. ठीक, अब देखिए ये पूरा स्टार्टिंग होता है कोरोना के टाइम से. तो कोरोना के टाइम से क्या हुआ कि कुछ चाइनीज ऐप जो डिफंक्ट NBFCs थी उनके साथ डील करके दे स्टार्टेड गिविंग स्मॉल लोन टू लोअर मिडिल इनकम पीपल, पुअर पीपल एक्सेट्रा. फाइन, बट उसका जो इशू है दैट इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. इशू इज़ व्हाट? वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. सेकेंड क्या है कि जब कोई ये हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं पाता देन द कंज्यूमर हु हैव टेकन द लोन दे आर इंटिमिडेटेड. फाइन, अब RBI का एक पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड एज SACHET, सैचेट. ये जो सैचेट है इट इज़ RBI's पोर्टल फॉर अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़. अगर किसी को कंप्लेन करना है फॉर अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ दे कैन डू देयर कंप्लेंट्स ऑन सैचेट. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इलीगल लोन है, सबसे पहले RBI ने क्या किया? RBI सेटअप द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग. This working group on digital lending, it identified 600 illegal lending apps which were operating in India. Then the government, okay, had designated the Department of Supervision which comes under RBI to deal with complaints related with unauthorized lending platforms. Fine. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो RBI की जो वर्किंग ग्रुप थी उसने 600 illegal apps को आइडेंटिफाई किया. तो उसमें से 27 illegal loan apps they were blocked on App Play Store under the Information Technology Procedure and Safeguard for Blocking of Access to Information for Public Rules 2009. This comes under Section 69A of IT Act. Okay, तो जो 27 जो apps ब्लॉक हुए थे they were done under Section 69A of IT Act 2000. ठीक, उसके बाद अगस्त 10 तारीख को, इस अगस्त 10 तारीख को RBI ने एक रूल निकाला, एक रेगुलेशन निकाला कि जो भी लोन डिसबर्सल्स होगा और जो भी उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगे दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली बिटवीन बोरोवर्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. डिजिटल लोन एप्स और अदर एप्स दे विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रांजेक्शन. देन रिसेंटली Finance Minister has asked RBI to prepare the white list, okay, which will contain the names of all legal loan apps, okay, और उसके बाद इसके बाहर जो भी loan apps हैं which will not be the part of white list, they will all be removed from the App Store by Ministry of Electronics and Information Technology. Now from the editorial, let's do this trend. Right wheat push up inflation but South bucks the trend. So again we are revising this that after deaccelerating for 3 consecutive months, India's retail inflation has accelerated to 7% in August 2022. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले जो जुलाई में जो इन्फ्लेशन था वो कम हुआ बट अगस्त में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया. तो ये जो मेन रीज़न था इन्फ्लेशन बढ़ने का दैट वाज बिकॉज ऑफ रिटेल फूड इन्फ्लेशन विच वेंट टू 7.6% इन अगस्त. ये जो फूड इन्फ्लेशन था इट वाज मेनली ड्राइवन बाय सीरियल प्राइसेस लाइक व्हीट एंड राइस विच क्विकन टू 9.5% विच इज़ हाईएस्ट सिंस फरवरी 2014. अब देखिए इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है ना. इफ़ वी कंसिडर द सदर्न स्टेट्स, सो द अगस्त फूड इन्फ्लेशन इन दिस 4 स्टेट्स विच आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका इज लेस देन 5%. ओके, और तेलंगाना में इट वाज 6%. बट अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, गुजरात, राजस्थान की, ठीक है ना, तो सी it is 11.5% and 10.5%.
ठीक। देन वेस्ट बंगाल में देखिए 10.3%, उत्तर प्रदेश में 9.2, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड 8.5%। फाइन, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दैट ड्यू टू राइजिंग लोकल प्राइसेस, अब गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसको रेनफॉल से कंपेयर करके दिखाया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, दैट देयर वाज डिक्रीज इन सोविंग एरिया। तो गवर्नमेंट ने इसको डोमेस्टिक सप्लाई कम ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इट इम्पोज्ड एक्सपोर्ट बैन ऑन ब्रोकन राइस ऑन September 9 एंड इट ऑल्सो मैंडेटेड एन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑन वेरियस ग्रेड्स ऑफ राइस। फाइन। उसके बाद मिड मई में गवर्नमेंट ने वैसे भी वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट के साथ साथ वीट के फ्लोर, आटा पे भी गवर्नमेंट ने जो है बाद में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया to cool down the prices. Now the next is conversion therapy. Friends, यहाँ पे this article is very important. तो यहाँ पे देखिए मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, that is called as S. Sushma versus Commissioner of Police. So this verdict is very important because it has prohibited conversion therapy in Tamil Nadu. Okay, conversion therapy जो है, जो LGBTQ+ कम्युनिटी होती है, okay, उनको करवाया जाता है, ठीक है। सो समटाइम्स इट इज़ एनफोर्स एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, सो दैट्स वाई मद्रास हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट इट शुड बी प्रोहिबिटेड। फाइन, एंड द कोर्ट हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोफेशनल्स हु आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन एनी फॉर्म ऑफ कन्वर्जन थेरेपी। उसके बाद इस जजमेंट के बाद जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इंडिया का, विच इज़ द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, so it directed all state medical councils to ban conversion therapy under Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulation 2002. Now, which judgment decriminalized homosexuality in India? So it is very important judgment, that is Navtej Singh Johar and others versus Union of India in 2018. The next is NSCN-IM. So NSCN-IM, that is Nationalist Socialist Council of Nagaland, Isaac Muivia faction. So now recently it has declared that it is going to re-engage in talks with the union government on the basis of framework agreement which is signed in 2015. So it is a very important for lasting peace in Nagaland. Okay, तो अगर आप देखेंगे कि 2019 में NSCN-IM came out of this negotiation, ठीक है, now they are going to come back. तो अगर आप NSCN-IM को देखोगे तो इट इज़ द स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ NSCN, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या था, पहले था नागा नेशनलिस्ट काउंसिल, NNC, नागा नेशनल काउंसिल, ठीक है, ये बनी थी इंडिपेंडेंस के आसपास। उसके बाद क्या हुआ कि शिल्लोंग अकॉर्ड हुआ, ठीक है, 1975 में शिल्लोंग अकॉर्ड हुआ। जैसे ही शिल्लोंग अकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ कि NNC से कुछ लोग बाहर आ गए एंड दे फॉर्म द सेपरेट ग्रुप विच वाज कॉल्ड एज NSCN। बाद में ये हुआ 1980 में, बाद में 1988 आते आते, ठीक है ना, NSCN भी दो भाग में बढ़ गया। वन वॉज NSCN इसेक मुइवा एंड वन वॉज NSCN खापलांग, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि वेरियस स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते चले गए नागालैंड में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स के साथ बात किया, बट NSCN-IM it was still out of the talk, but now it has re-entered now it has shown its inclination to talk again with the government. So here we can see that the framework deal comes to its conclusion. Okay, the next is one of the major demand of NSCN-IM और इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नागालैंड। तो क्या है, एक तो है ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड क्या है, ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर नागालैंड कंप्राइजिंग ऑफ टुडेज नागालैंड, देन सम नागा इनहेबिटेड एरियाज इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है। सेकेंड इज येजाबो। व्हाट इज येजाबो, दैट इज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट फ्लैग। Okay, now friends, about this article, that is positioning India in a chaotic world. Again we are talking about the multilateralism, ठीक है, and challenges inherent in that. So if you will just see that एक तरफ SCO है, एक तरफ क्वाड है, इंडिया दोनों का मेंबर है,
Okay, so now you can see that the author is suggesting that this is the new version of नॉन अलाइनमेंट. कुछ दिन पहले हमने इसको एक नए टर्म में भी पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड एज मल्टी अलाइनमेंट. ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड एज मल्टी अलाइनमेंट. तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, इंडिया को, जैसे कि ईरान के बारे में. तो 2019 में अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो इंडिया ने अपने सारे ऑयल इंपोर्ट्स ईरान से बंद कर दिए थे. बट जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ समरकंद में, तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दे हैड अ साइड टॉक्स. ओके, दे टॉक ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट, एंड ओवर हियर दे हैव सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ समिट टू सॉल्व दिस इशू. ओके, उसके साथ साथ अगर इफ़ यू रिमेंबर दैट इंडिया ऑल्सो आस्क्ड रशिया that to stop the war, okay, and which Russia has assured that definitely they are going to look into this. Fine. उसके बाद India's prime minister he also met with Turkey president Recep Tayyip Erdogan. Okay, तो past में Turkey जो है it has shown solidarity with Pakistan on Kashmir issue. Fine. The next dimension is nuclear dimension, so which has remained on the back burner for years. Now it needs consideration इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट. जैसे कि आप यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की बात होनी स्टार्ट हो गई है. सो नाउ द नेक्स्ट डायमेंशन फॉर इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर डायमेंशन. यहाँ पे देखिए टर्म यूज हुआ दैट इज कॉल्ड एज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन. सो व्हेन इंडिया डिड द पोखरण टेस्ट, ओके, सो इंडिया डिक्लेयर्ड नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन. इसका मतलब दैट इंडिया विल नेवर यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ओके, for the first time. But if India is attacked with nuclear weapon or biological or chemical weapons, then India can use the nuclear weapon in defense. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.